So now this question, given the transactional nature of US foreign policy, India-US ties can do without grand theories. Comment. इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ट्रांजैक्शनल नेचर क्या? ट्रांजैक्शनल नेचर मतलब कॉमर्शियल, कॉमर्स. Given the transactional nature of US foreign policy, India-US ties can do without grand theories. एक और ऐसे लिख लो क्वेश्चन. डिस्कस द करंट डेवलपमेंट्स एंड करंट trends in India-US relations under Trump. ये स्टेटमेंट का क्या आंसर होगा? गिवन द ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी. यूएस फॉरेन पॉलिसी का नेचर ट्रांजैक्शनल है, केवल ट्रांजैक्शनल है. अल्टीमेटली तो नहीं है, दोनों है ना. ऐसे केवल ट्रांजैक्शनल तो नहीं बोल सकते हो, स्ट्रेटेजिक भी है. जो अभी जो ट्रेड वॉर है उसको कहाँ डालोगे? ट्रांजैक्शनल में, स्ट्रेटेजिक में. तो कोई ज़रूरी थोड़ी है स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना है. स्टेटमेंट को तुम दूसरी ढंग से भी इंटरप्रेट कर सकते हो. एंड इंडिया यूएस टाइज कैन डू विदाउट ग्रैंड थियरीज. ग्रैंड थियरीज क्या है इंडिया यूएस की? ग्रैंड थियरीज जैसे आज ये सब बातें, आवर रिलेशनशिप हैज़ overcome the hesitation of history, most defining partnership. You think these statements not needed? Not needed? Needed. How does that help? Track to diplomacy थोड़ी है ये तो ओबामा बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना. Needed ना? You need some optics also. हाँ मतलब ठीक है, these statements have limited importance, but it is fine. It is a part and parcel of the diplomatic life of nations. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के थोड़ा अगेंस्ट जाना है. Given the transactional nature of US foreign policy, India-US ties, तो सबसे पहले क्या डिस्कस करना चाहिए कि यूएस का ट्रांजैक्शनल नेचर, व्हाई इट इज सेट. ठीक है, तो व्हाट यू कैन से दैट पॉइंट नंबर 1, राइट फॉर स्कॉलर्स लाइक नोम चॉम्स्की, US foreign policy is shaped by the interest of the capitalists. Right, next, right, as suggested by C. Wright Mills, US is led by power elites which include federal politicians, corporates, and military heads.
right? US President Eisenhower acknowledged that USA is governed by military industrial complex. Right, right. Hence, above paradigms suggest that US foreign policy aims to protect the interests of its capitalist class, right? Thus primarily guided by commerce. In USA has built Bretton Woods institutions, WTO, to handle global commerce. Right. Trump's America First policy, trade war, gives credence to such paradigms that US foreign policy is transactional, right? Considering the fact that US President is himself a businessman, has been a businessman, it has been predicted that policy will be more commercial than strategic. Right, right. Some of actions where US President has put the question mark on US assistance to NATO, comma, security partnerships with Japan and other allies show the primacy of the commerce. ठीक है, अब नेक्स्ट लिख सकते हो, राइट. However, it is wrong to think that US policy is transactional. Right? US actions
have been shaped by long-term geostrategic and geoeconomic interests. Right, geoeconomy and geostrategy या geopolitics, geoeconomics and geopolitics are not exclusive, rather interdependent concepts. Right, the two fundamental principles of US policies have been control the rise of Eurasian power, second, control oceans, to have a control over world trade. Next, current US-China trade war is not just geostrategic, is not just geoeconomic, rather geostrategic. ठीक है, तो वही है जो लॉस्ट स्पेस है एंड ऑल, ऐसा है नहीं. अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट US पॉलिसी या ट्रम्प्स पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. पढ़ा तुमने कहीं? क्या था? India can also play जीरो सम गेम टाइप की तो पॉलिसी में फंस जाएंगे उस इंटरप्रिटेशन में. ट्रांजैक्शनल में ज़्यादा अच्छा है, कॉमर्स वॉमर्स से ही करो. जैसे इंडिया और यूएस में कॉमर्स एक मेन डायमेंशन है. मतलब वो तो है, तो मतलब किस में, कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में? नॉर्मली तो कॉमर्स के ही कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है ट्रांजैक्शनल. जैसे यूएस इज फोकसिंग ऑन मार्केट, इंडियाज डिफेंस मार्केट, और इंडिया यूएस के बीच में जो मेन है वो इकोनॉमिक ही है. मतलब इकोनॉमिक है, यूएसए का जो मार्केट है. वाई वी कैन नॉट लीव यूएसए? मेन थिंग इज यूएसए's मार्केट विच ईरान कैन नॉट प्रोवाइड. ठीक है, यू कैन इंटरप्रेट ट्रांजैक्शनल इस सेंस में. क्या? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा सोचना कि यूएस फॉरेन पॉलिसी ट्रांजैक्शनल है, ऐसा ये वर्गीज इस टाइप के जो हिंदू वाले एडिटर्स हैं वो लोग कहना चाहते हैं. और ये समझ लो कि ट्रम्प बिजनेसमैन है तो इंडिया और यूएसए में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है. लेकिन ज़रूरी थोड़ी है. हमारे हिसाब से तो इंडिया यूएस रिलेशंस ट्रम्प के अंडर में और भी अच्छे हो गए. अब एक दो एरियाज में तो हमेशा कंसर्न रहेगा,
और वीज़ा वाले में भी तो दे गेव अ clarification that they are not preventing those persons with high skill. अब US will take care of some of its own interest also. ठीक है, तो रिलेशंस तो स्ट्रेटेजिक STA1, फिर इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए इन्होंने 100 years पॉलिसी लाई है. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इंडिया के प्रो है, अफगानिस्तान स्ट्रेटजी में है, क्वाड बनाया है, इंडो पैसिफिक में है. अब जान लोगे क्या है, मतलब क्या अच्छा और क्या करेगा वो बेचारा. आई थिंक दैट इज फाइन वॉट एवर ही हैज डन. देर इज नो लॉन्ग टर्म हार्म. उल्टा इंडिया ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें, चिचोरापन टाइप कर रहे हैं, ब्रिक्स के पास जा रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए. स्ट्रेंथन करना चाहिए पार्टनरशिप. तो कोई भी देखेगा, ऐसा कौन है जो खुद का नहीं देखेगा. हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हम अपना भी भला कर नहीं पाते, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं कि हम सबका भला चाहते हैं. अगर हम अपना कर पा रहे होते तो हम भी ऐसे नहीं होते. ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे हिसाब से. इनका स्टेटमेंट एक है सबसे बढ़िया, इसी से स्टार्ट करना अपना आंसर. जयशंकर का अभी तो बाद में बताने में, पहले मतलब लिख लो, मतलब लेकिन स्टेटमेंट यही कि डोंट एडमोनिश ट्रम्प, एनालाइज ट्रम्प. ठीक है, तो ये सब जो हिंदू वाले ऑथर्स के चक्कर में मत पड़ो. एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने कितनी सही बात कह दी. डोंट जस्ट एडमोनिश, एनालाइज. अगर तुम एनालाइज करोगे तब पता चलेगा ही हैज नॉट डन एनीथिंग विच इज अगेंस्ट इंडिया. एंड व्हाई शुड ही डू, ही गिव primacy to India, he has to give primacy to USA. You give primacy to your interest. तो ये जो आंसर है ना, इसी फ्रेज कोई भी आए इंडिया यूएस, इसी से लिखो डोंट एडमोनिश ट्रम्प, एनालाइज ट्रम्प. ठीक है, हमने तो ऐसे हिंदू पढ़ना बंद कर दिया, मैं नहीं पढ़ती. ऐसा सब गलत सलत दिखा देते हैं उसमें, जैसे सब गलत चल रहा है, ट्रम्प खराब है, मतलब है. हाँ, और फिर इतना एकेडमिक बिना मतलब का कोई फायदा भी नहीं. लिखो जल्दी, कहाँ पहुंचे तुम लोग. ट्रम्प पॉलिसीज विद रेस्पेक्ट टू इंडिया. ठीक है, तो इसमें लिखो राइट, देयर हैज बीन द कंसर्न अमंग Indian strategic community about the transactional nature of Trump's foreign policy, comma, its likely impact on India's commercial and geopolitical interests, and hence the suggestion is to go for balancing, comma, right, assert strategic autonomy, go for multiple alignments, ब्रैकेट में लिख दो जॉर्ज वर्गीस. इनको भी आर्टिकल में डायरेक्टली लिखा हुआ है व्हाट अमेरिका फर्स्ट मीन्स ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल मतलब कॉमर्शियल, कॉमर्शियल ये. ठीक है, जॉर्ज वर्गीस, कॉमा, सुहासिनी हैदर, सुहासिनी हैदर,
ठीक है. Right, next, some of the recent decisions of Trump administration. Like, first, immigration policy. Next, CAATSA. Next, policies towards Iran and Russia. Next, imposition of tariffs on aluminium and steel. Postponement of 2+2 summit. Has given rise to the suspicions. Likho right. Likho right. According to scholars like Harsh Pant, Trump has created some turbulence but India-US partnership is mature, comma, the structural and institutional variables. Structural variable क्या होगा? Rise of China. And institutional variables, जो हम लोगों ने इतने सारे डायलॉग वायलॉग इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ठीक है, propel them to manage the turbulence. ये थोड़े सेंसिबल लग रहे हैं. अब नेक्स्ट वालों को भी लिखो. एशले टेलिस, right? There is no fundamental strategic shift. No fundamental strategic shift, comma, polygamous relations is a norm in present world order. Full stop, right? Right. Thus, even from India's side, there is no fundamental change. इसमें लिखो राइट. शिव शंकर मेनन, बुक का नाम लिखो चॉइसेस. चॉइसेस कॉलन में इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इनका भी बहुत अच्छा है. पहला तो लिखो, देयर इज अ कन्विक्शन इन इंडियाज साउथ ब्लॉक दैट इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
would serve our national interest better. Right, the right rising China is a factor. Right, the determinant is not going to change in near future. क्योंकि वर्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसलिए कोई चेंज होने, ये जो एक वर्ड इन्होंने एक यूज किया है बहुत अच्छा है, लिखो राइट, देयर इज अ राइट इनवर्टेड कॉमर्स क्रिएटिव टेंशन in India US relations. क्रिएटिव टेंशन, टेंशन तो है लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है, कंस्ट्रक्टिव है, नॉर्मल, मतलब क्रिएटिव टेंशन से डिफाइन होता है, राइट और क्रिएटिव टेंशंस में आता है, राइट यूएसए's वेस्ट एशिया पॉलिसी creates awkward position for India. Right, India as a developing country makes such demands which strain US trade preferences. Right, this is going to be a normal phase. नेक्स्ट लिखो, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर, जुलाई 2017, लिखो राइट, डोंट डेमोनाइज ट्रंप, कॉमा एनालाइज ट्रंप। देखा है ब्यूरोक्रेट ने क्या बात की, कितना प्रिसाइज, ठीक है, ये तो सारे सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ट यही है, ठीक है, की इज टू एनालाइज, ठीक है, लिखो राइट, दो देयर हैव बीन strains and divergences, yet Trump administration has taken ties to new level. ब्रैकेट में go Nikki Haley, US envoy to UN. US envoy to UN. अब ठीक है, और इसमें लिखो राइट, अकॉर्डिंग टू हर US वैल्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, strategic partnership with India even at the cost of commercial interest. लिखो एग्जाम्पल, right, though USA has brought CAATSA
but exempted India from the sanctions under some conditions. First, right, increase defense import from USA, which means gradually shift from Russia. Second, right, none of the action should be against USA security interest. ये तो वैसे ही कह दिया, क्या हम लोग करें हैं? अरे तो कुछ अपने कांग्रेस को बताने के लिए है या अपने यहाँ के लोगों को बताने के लिए। उल्टा हो सकता है कि बिहाइंड द कर्टेन India may be acting as an interlocutor between US and Russia, because rising China is a threat to all. ठीक है, for the time being India can be seen in that light also, क्योंकि Trump himself wanted to improve relations but there is an opposition. ठीक है, and then Trump want India to be a net security provider. So when India acquires S-400 या ये जो Triumph है, तो is it? Yes, S-400 Triumph. So this is going to strengthen India's capability. तो बाकियों EU या उनके लिए ज़्यादा है और इंडिया को तो वेव ऑफ किया है. ठीक है, फिर लिख सकते हो similarly in the past India got waiver from US sanctions in importing oil from Iran. Full stop, right? Now also there is a possibility that India will get some exemptions. Right? India's preference is evident. That when India is itself reducing, energy dependence on Iran. Next लिखो, right after next जो indications है strategic partnership के, देखो right after civil nuclear agreement US took pain for India's entry in NSG. हाँ तो पेन तो लिया ना. ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, राइट, US played major role with respect to India's entry in other regimes, MTCR, Wassenaar, Australia Group. Next, the national security strategy of Trump explicitly mentions, और ट्रम्प का तो होने वाला है इम्पीचमेंट है, तो अपने लिए तो नहीं अच्छा है.
mentions the deepening of strategic partnership with India, support India's leading role in Indian Ocean. Next, Trump's South Asia policy. Right. A critical angle is deepening strategic relations with Afghanistan, and mentioning India as key security and economic partner. Next, right, materialization of Quad. Which materialization of Quad, QUAD, Quad. तो राइट मतलब दो थोड़ा अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है एम्स बट कम से कम बंद हो गया. राइट, गिव्स लीवरेज टू इंडिया in dealing with China. Next, India is the only country for which administration has given a policy for next 100 years. ब्रैकेट में लिख दो फॉर्मर सेक्रेटरी टिलरसन. नेक्स्ट इंडिया, नेक्स्ट लिखो राइट, यूएसए इंक्लूडेड लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, as global terrorist organizations. Next, STA-1 status. STA-1 status क्या है? स्ट्रेटेजिक ट्रेड. अब और इतना सब तो कर दिया, ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो राइट, दो लिखो राइट, दो देयर आर कंसर्न्स लाइक यूएस पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज, दोहा टॉक्स, tariff issues, IPR, suggestion of US trade representative, to end India's status under GSTP, generalized system of trade preferences meant for developing countries imports. ठीक है, तो ये सब कंसर्न्स हैं. अब इंडिया को कैसे देखना चाहिए? सब एकदम नाराज होके दूसरे के साथ चले गए, ठीक है.
ऐसे समझना चाहिए कि अल्टीमेटली ये सब क्यों किया जा रहा है. अल्टीमेटली दीज आर नॉट टारगेटेड अगेंस्ट इंडिया, दीज आर टारगेटेड अगेंस्ट चाइना. और इंडिया का इंटरेस्ट है यूएसए रीगेन इट्स हेजेमनी में. प्लस फाइन, ट्रम्प इज अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑल्सो, नॉट इंडियन प्रेसिडेंट. ठीक है, तो कुछ तो वहाँ के लिए भी कर लेने दो. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब लिखो राइट. लिखो राइट, हाउ इंडिया शुड लुक एट इट, लुक एट ट्रम्प्स एक्शंस. Right, India should handle the relationship with maturity. Right, US actions are to regain the lost strategic space to China. Right, India should have patience and take the long-term view of the relationship. ठीक है, तो राइट, राइट व्यूज ऑफ सीमा सिरोही. सीमा सिरोही, SIROHI, सीमा सिरोही. लिखो राइट, इंडिया वुड नॉट लाइक a strong China competing USA. Or a strong Indo-US is a better option than a strong China and India. ठीक है, यूएस के साथ तो हमारी रिलेशनशिप बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है. चाइना के साथ क्या होगी? चाइना के साथ बस हमको इतना मेंश्योर करना है कि वॉर नहीं हो. ठीक है, तो लिख सकते हो राइट, राइट विद यूएसए वी हैव lot of constructive prospects. With China, the goal is limited. That is to avoid the border war. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है चाइना के साथ. ठीक है, अब चाइना पे अभी बता रहे या कर तो रहे, जा रहे वुहान गले मिल रहे, जिसको देखो कभी पुतिन के कभी शी सिंह. अरे अपनी भी कोई इज्जत बना के अलग बैठो ना, क्या करना है गले वाले मिल के. अरे भाई, जो तुम्हारा दोस्त है उसी के तुम प्रो नहीं दिखना चाहते. इजराइल तुम्हारा दोस्त है, उसके प्रो नहीं दिखना चाहते.
तो दोस्त वाले लोग भी तो परेशान हो जाएंगे तुमसे। हम लोग कंफ्यूज क्यों, हमारा दोस्त हैं? कंफ्यूज नहीं है, मतलब जैसे ही हमें पता चलता है हमारे दोस्त हैं, वैसे ही हमको लगता है कि अब हमारे पास मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग का स्कोप आ गया। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे कि हम बड़े न्यूट्रल हैं और हमारे लिए सब समान है, और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इतना जा करके कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तुम चले जाओ एससीओ में, लेकिन अलग से मिलने को जरूरत है चाइना से? हाँ, एनएसजी कौन सा वो दे रहा है? ना एनएसजी दे रहा है, ना पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो दूसरा दोस्त नहीं है उसको अपना नहीं बना पाते हैं और अपने वाले दोस्त को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनको मौका मिल जाता है बड़ा दिखाने का कि मतलब मॉरल स्टैंड है, सॉवरेन इक्वालिटी। अब वो भी यूएस कैसा है फिर, बहुत रियलिस्ट नेशन है, ज़्यादा ये सब कंफ्यूजन क्या तो चल भी देंगे वो लोग। ठीक है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो अब नेक्स्ट लिखो इनका। एक बुक है, ये थोड़ा क्रिटिकल है, श्रीनाथ राघवन। श्रीनाथ राघवन की एक नई बुक आई है, द मोस्ट डेंजरस प्लेस। कॉलन अ हिस्ट्री ऑफ यूएसए इन साउथ एशिया। तो ये प्रो होंगे या एंटी होंगे यूएस? ये कहाँ, ये भी एंटी है। तो एक्चुअली द मोस्ट डेंजरस प्लेस क्लिंटन ने बोला था इंडिया को व्हेन ही विजिटेड। ठीक है, और अब 19 मतलब 20 इयर्स हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बताया, मतलब ही हैज शोन द कॉन्ट्रडिक्शन इन यूएसए's अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, तो इसमें पहले तो लिखो, राइट, यूएसए हैज ऑलवेज गिवन lot of leverage in, lot of importance to South Asia in foreign policy. ठीक है, second, right, USA has invested billions of dollars and thousands of lives next, the impression has been that South Asia has been peripheral to US interests, but reality is different. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, राइट, however USA's approach has been guided by short-term thinking, internal contradictions, resulting into unintended consequences. ठीक है, right, contradiction lies even in India dealing with USA. Right,
right, from Vajpayee declaring USA as India's natural ally, to Modi reaching to China and Russia in the age of Trump, right, one can't help except wondering that US-India relation is condemned to Sisyphean, Sysphean, sorry, Sisyphean, Sisy, Sisyphus, Sysphean, Sisyphean agony, 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 मतलब वही ऐसा टास्क जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे. एक लिखो हर्ष वी पंत, देखो राइट, सम ऑफ द रीसेंट डिसीशंस जिसमें एक है एग्जेम्पशन फ्रॉम काटसा, देन STA1 status, resumption of dialogue to be held in September, show that the too much noise against Indo-US partnership in the end was much ado about nothing. Much ado about nothing. Full stop. Hyperventilation of Indian strategic community was exercise in vanity. Right? The relation, yeah? Ado about nothing. ऐसे हिंदू वाले लोग ऐसे चिल्ला रहे थे. In the end, much ado about nothing. ADO. ठीक है. फिर hyperventilation of Indian strategic community was exercise in vanity. India has a special relationship right. Trump's priorities have been obvious, like North Korea and Russia. Look, right? Problems will grow as relationship will become more broad and more deep. ठीक है, right? However, there is no going back to
old days of recriminations and wranglings. Recriminations and wranglings. Recriminations मतलब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये सब अब नहीं है. लास्ट मेरे को उदय भास्कर. Recriminations and wranglings, WRANGLINGS, जो कोल्ड वॉर के टाइम में होता था, ऐसा कुछ नहीं है. उदय भास्कर. Relationship is in better state and resilient. Better state and resilient. अब लिखो राइट. इंद्रानी बागची, इनका नाम ऐसे कोई ज़रूरत नहीं. मेन तुम अपनी तरफ से भी लिख सकते हो. राइट. 2019 marks the 20 year of completion of the strategic partnership started in 1999 as a part of Jaswant Singh stroke Talbot talks. Jaswant Singh stroke Talbot talks. Right, everyone is waiting for some big flashing event. Right, it appears as if the relationship has lost its right inverted commas mojo. मोजो पता है क्या होता है? हाँ? जादू. ठीक है, तो वो जो एक मूवमेंट होता है, लोग उसका तलाश रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर जैसा है. नहीं है तो कोई बनाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी है सही है. ठीक है. ट्रम्प में विजिट नेक्स्ट ईयर. हाँ चाहिए 2019 में ना. इलेक्शंस कब है? मई में. हाँ 19 निकल जाएगा जनवरी, 26 जनवरी. तो बाहर आने का अच्छा है. चलो ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना ही रखा जाए. एक्चुअली आई हैव सम फंक्शन टू गो. ये सब तो खैर खास है नहीं वैसे, नोट्स में ही है. इंडियाज इंटरेस्ट एंड पॉलिसीज टुवर्ड्स वेस्ट एशिया हैव बीन टू लीनियर, मतलब यूनी डायरेक्शनल, वही नैम एम वाला. हाँ, तो अब नेक्स्ट क्लास सैटरडे को कर लेंगे एक और, सैटरडे और संडे. ठीक है, तो 5 बजे लेकिन करना सैटरडे को. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसके बाद और क्या करना है? इस पेपर से ही करें और फिर अभी अपने पास कितने सैटरडे संडे? हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं. तुम्हारे एग्जाम कब से? 28 से समझो 15 तक है. 2 वीकेंड ऑन है, तो इस सैटरडे संडे IR खत्म कर देते हैं. वो सब इसी में हो जाएगा, सैटरडे संडे. कुछ तो नोट्स और क्लास वो मॉडल आंसर से भी निकालो. ठीक है, और नेक्स्ट सैटरडे संडे जो बचेगा उसमें IGP करेंगे. लेकिन इतना पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, तुम लोग कोई मोटिवेटिंग हो नहीं, कुछ नहीं लिखते. बाकी पिछले टेस्ट सीरीज में लोग शुरू में खराब लिखते थे, लेकिन बाद में सब 5वां टेस्ट हो गया. ऐसे ही रखेंगे शेड्यूल फिर.
पूछ सकते हो। ऐसे डाउट आउट ऐसे लिख के भी दे दो तो ऐसे कोई वीडियो भी बना सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। पार्डन? पीडीएफ लगभग आप अभी श्रीलंका और बांग्लादेश का भेजा है। नेपाल तो मैंने पढ़ा दिया, जरूरत है? पाकिस्तान भी पढ़ा दिया, अफगानिस्तान है ना तुम्हारे पास, तो मेजर है, बाकी नोट्स भी है, उसके अलावा कोई डेवलपमेंट तो है नहीं। हाँ, रोहिंग्या मैंने प्रिपेयर तो किया था, रिफ्यूजी वाली, वो उस टेस्ट पेपर में पूछी थी ना, तो नेक्स्ट सैटरडे 5 बजे फिर मालदीव्स का नोट्स आज मिल जाएगा। नॉर्थ साउथ का एक्चुअली मैंने क्वेश्चन डाला है अभी वाले टेस्ट में। है नेक्स्ट क्लास में बस सारा खत्म करेंगे सैटरडे संडे। संडे तो पूरा दिन होगा, सैटरडे 5 बजे देखते हैं फिर, एक्चुअली टाइम मिलना चाहिए ना कंटेंट बनाने के लिए। मेरा तो ये वाला जो बैच इतना ख़राब हो गया है, 10 यहीं